ابن آدم کی زندگی سے جان پہچان۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یسوع ابن آدم کی حیثیت میں بہت پسندیدہ، ہر دل عزیز اور معجزاتی ہستی بن گیا۔ آج ہم یسوع ابن آدم کا ایک دوسرے پہلو سے جائزہ لیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پہلو کسی کے لیے پرکشش نہیں تھا، کیونکہ یسوع کی راہیں مشکلوں اور اذیتوں سے بھرپور تھیں۔ اس نے انسانی روپ میں آ کر ہم پر گزرنے والی سب مصیبتیں، ہمارے حالات اور جذبات خود پر طاری کر کے دیکھ لیے۔ آئیں دیکھتے ہیں یسوع نے دنیاوی زندگی میں کن مصائب کا سامنا کیا۔ یسوع کو دشواریوں کا سامنا تھا۔ یسوع کی آزمائش ہوتی رہی۔ متی 4 باب 1 اور 2 آیت۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ لوکا 4 باب 13 آیت۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ بچوں، شیطان نے باغ عدن میں جس طرح حوا کو ورگلا کر خدا کے حضور گناہ میں پھنسا دیا، اسی طرح اب وہ ہر دم موقع کی تلاش میں رہتا کہ یسوع کو روزمرہ زندگی یا تبلیغی مہم کے دوران کسی طرح گناہ میں الجھا دے۔ بچوں، یسوع انسانی وجود میں تھا، اس میں انسانی کمزوریاں تھیں۔ چنانچہ لازم تھا کہ یسوع بھی اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے دعا کا سہارا لیتا۔ یسوع کو اس کے اپنے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ بچوں، اگرچہ یسوع طاقت و قدرت کا سرچشمہ تھا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے، مگر اس کے اپنے ہم وطنوں، یہودیوں، فریسیوں، شریعت کے عالموں اور مذہبی رہنماؤں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آئیں دیکھتے ہیں انہوں نے یسوع کو کیسے رد کر دیا۔ تب وہ ناصرت چلا آیا، جہاں پلا بڑا تھا کہ لوگوں کو خدا کے کام بتائے، مگر لوکا 4 باب 28 سے 30 آیت۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ تب ایک اور موقع پر متی 13 باب 54 سے 57 آیت۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟
اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ نہ صرف یسوع کے شہر کے لوگ اس پر بھڑک اٹھے بلکہ اس کے بھائیوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اپنے گھرانہ کے ہاتھوں یسوع کی بے قدری۔ یوحنا 7 باب 1 سے 5 آیت۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر۔ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یسوع کے چھوٹے بھائیوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، یہاں معمولی سے قصبے میں چوری چھپے کام دکھانے کی بجائے اپنی قابلیت یروشلم میں جا کر استادوں پر ثابت کر۔ یسوع کے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہیکل میں رہنے والے استاد ہی شریعت کو سمجھتے ہیں اور انہی کے پاس ہر اختیار ہے۔ مگر ان کا بھائی تو محض ایک معمولی سا پڑھائی ہے۔ یہودیوں نے یسوع کو مسترد کر دیا۔ یوحنا 7 باب 14 سے 15 آیت۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ ہیرودیس نے یسوع کو رد کیا۔ لوکا 23 باب 11 آیت۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا۔ اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ یہودیوں کی طرف سے رد کر دیے جانے کے علاوہ مذہبی رہنما یسوع سے حسد بھی کرتے اور اس سے چھٹکارا پانے کی جستجو میں رہے۔ فریسی یسوع سے حسد کرتے رہے۔ یوحنا 12 باب 11 اور 19 آیت۔ کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچا تھا تم سے کچھ نہیں بن پڑتا ہے، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ متی 27 باب 1 2 اور 18 آیت۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالے۔ اور اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاطس حاکم کے حوالہ کیا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ فریسی یسوع پر الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈتے رہے۔ وہ طاق میں رہے کہ یسوع سبت کو کیا کرتا ہے۔ لوکا 6 باب 7 آیت۔ اور فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے
या नहीं? ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाएं। यसू पर सियासी दाव पेच आजमाए गए। लूका 20 बाब 20 आयत। और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे के रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े, ताकि उसको हाकिम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। लूका 20 बाब 23 से 24 आयत। उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा, एक दीनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। तौरेत की बुनियाद पर यसू को परखा गया। यूहन्ना 8 बाब 3 से 6 आयत। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी। और उसे बीच में खड़ा करके यसू से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। बड़े काहनों और उस्तादों ने यसू को मरवा डालने के मंसूबे बांधे। मरकस 11 बाब 18 आयत। और सरदार काहन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे। फरीसियों ने यसू को मारने के मंसूबे बांधे। मरकस 3 बाब 6 आयत। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उससे किस तरह हलाक करें। बच्चों, क्या आपको यूं लगा जैसे यसू हमारे जैसा ही था? उसकी हकारत की गई, उससे हसद किया गया। हद ये कि उसकी मौत के मंसूबे बनाए बांधे गए। तरके ताल्लुक की रवश अपनाई गई और हर तरह की बेयकीनी और लाताल्लुकी से रद्द कर दिया गया। ये रवैया सिर्फ अपने शहर के लोगों, खुदा का खादिम कहलाने वालों या घर के अफराद पर मुनहसिर नहीं था, बल्कि हर कोई बढ़ चढ़ कर बदसलूकी पर तुला बैठा था। बच्चों, यसू दुनिया में एक आम इंसान के अंदाज में जीता रहा। उसे सब हालात पेश आते रहे जो किसी भी इंसान को जिंदगी में पेश आते हैं। अगरचे यसू खुदा का इकलौता बेटा है, फिर भी खुदा ने अपने बेटे के लिए जहां कहीं वो जाए तालियों की गूंज नहीं सुनाई। तौसीफो सताइश और अकीदत के फूल नछावर नहीं करवाए। खुदा ने अपने बेटे को उन्हीं हालात से गुजारा जिनसे हम और आप गुजरते हैं। चुनांचे जब कभी आप उदास हों, खौफजदा हो, लोग आपको धुतकार दें या आपका तमस्खुर उड़ाएं, तो ऐसे लम्हों में यसू को बताना ना भूलें, क्योंकि वो हमारी और आपकी तरह इस दुनियावी जिंदगी के सब तजरबों से गुजर चुका है।
जज्बात और एहसासात के इन सब मरहलों से गुजर चुका है। आसमानी बाप का यही फैसला था कि यसूह को इंसानी रूप में पैदा करे, ताकि वो हमारे सब दुख अपने वजूद पर झेल के देखे। दुख और तकलीफ के वो सारे एहसास जो हम पर गुजरते हैं, यसूह भी उन सब को छू कर देखे। बाप हमसे ऐसी ही मोहब्बत करता है। यसूह को दोस्तों की तलब थी। बच्चों, यसूह से दोस्ती करके हम अमन और सलामती पा सकते हैं। आप खुद को कितना ही कमतर समझते हो, यसूह आपके साथ की ख्वाहिश रखता है। जब यसूह जमीन पर था, उसे हमारी ही तरह दोस्तों की तलब रही। यीशु को लोगों के हजूम में रहना बहुत पसंद था। आए देखते हैं यसूह किस तरह दुनियावी जिंदगी में लोगों के दरमियान रहा। यसूह को लोगों की तरफ से इजहारे मोहब्बत पसंद था। शमाऊन नामी एक मुअज्जज फरीसी ने मरियम को हकारत से देखा। उसका ख्याल था कि ये एक गुनहगार औरत है जो इस काबिल नहीं कि शुरफाए शहर के साथ दावत में शरीक हो सके। मगर यसूह उस औरत के दिल का हाल जानता था। लोका 7 बाब 44 से 46 आयत। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमाऊन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पाँव पर इतर डाला है। यसूह को अपने हजूर लोगों की तवज्जो पसंद थी। मरकस 14 बाब 3, 4 और 6 आयत। जब वो बैत अनिया में शमाऊन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए जाया किया गया है? यसूह ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। यसूह चाहता था लोग उसकी बातें तवज्जो से सुने। लोका 10 बाब 38 से 42 आयत। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मिर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यसूह के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मिर्था खिदमत करते करते घबरा गई। ओह! बस उसके पास आकर कहने लगी, खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मिर्था, मिर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रो तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा।
यसू को लोगों की तरफ से खिदमत के अंदाज पसंद थे। अगरचे यसू खाना कई गुना बढ़ा सकता था, मगर नेक दिल लोगों के अतिये बड़ी खुशी से कबूल करता था। लूका 8 बाब 3 आयत। और यूआना हेरोदीस के दीवान खूजा की बीवी और सूसन्ना और बहतेरी और औरतें भी थीं, जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। अगरचे शागिर्द हमा वक्त यसू की तालीमात ना समझ पाते, मगर यीशु उनका मशहूर था कि वो उसके पास खड़े तो रहते हैं। लूका 22 बाब 28 और 29 आयत। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ। यसू हर एक से दोस्ती का ख्वाहां है। यूहन्ना 15 बाब 14 आयत। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। यूहन्ना 15 बाब 15 आयत। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। बच्चों, यसू हर किसी से दोस्ती और प्यार भरा ताल्लुक कायम करना चाहता है। इस बात से कता नजर कि आपकी उम्र क्या है। यसू के लिए आपकी दोस्ती फखर और दिली मुसर्रत का बाइस है। यसू रहम और हमदर्दी से भरपूर था। बच्चों, क्या आपने कभी कोई सरकंडा देखा? ये कैसा नजर आता है? दरख्त की कोई टहनी या किसी झाड़ी का हिस्सा? क्या किसी सरकंडे को तोड़ना आसान सी बात है? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की? क्या आपके ख्याल में किसी सरकंडे के हसूल की खातिर आपको रकम भी अदा करनी पड़ेगी? क्या ये बहुत महंगा मिलेगा? क्या आपको कभी किसी ने सरकंडा तोड़ डालने पर सरजनश की? जी बच्चों, सरकंडे तो वीरानों में आम मिल जाते हैं। या सड़क के किनारे? ये उगते भी झुंड की शक्ल में हैं। हम सरकंडों के करीब से गुजरते वक्त कभी कभार उन्हें तोड़ भी लेते हैं कि चलो इन्हें थोड़ा तोड़े मरोड़ेंगे, कुछ शुगल ही सही। और इस शुगलबाजी के बाद हम उन्हें फेंक कर चलते बनते हैं। सरकंडे बेकार चीज हैं, क्योंकि ये आम मिल जाते हैं। किसी को कभी इनकी परवाह तक नहीं होती। बच्चों, क्या आप जानते हैं, यसू ने कहा था, अगर हमारी हैसियत किसी गैर अहम सरकंडे जितनी भी हो, जो किसी काम का नहीं होता, लोगों के ख्याल में तोड़ मरोड़ कर फेंक देने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मगर हम एक तिनके जैसा होते हुए भी यसू के लिए एक खजाने से कम नहीं हैं। यसू ने कहा, अगरचे तिनका मरोड़ा भी जाए, फिर भी वो उसे टूटने नहीं देगा। इस बात का मतलब है, जब दूसरे आपको नफरत भरी निगाहों से देख रहे हों, यसू ऐसा नहीं करेगा। जब दूसरों की नजर में आप नाकाबिले इस्लाह हो चुके हों, किसी काम के ना रहें,
हर तरफ से बदसलूकी का निशाना बन चुके हों, बेइज्जत होकर हर किसी की तवज्जो खो चुके हो, तो यसू आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। यसू आपकी कदरों कीमत पहचानता है, इसीलिए उसने आपके लिए जान पेश कर दी। यसू आपको अहम समझता है, इसीलिए आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गया। यसू का कहना है, अगर आप एक मोमबत्ती की तरह हो जिसके नसीब में जल्द बुझ जाना होता है, फिर भी वो उसे बर्बाद नहीं होने देगा। यसू एक आम शख्स तो नहीं जो किसी को कमजोर पाकर उसे कुचल डाले, या किसी बेहैसियत और नाअहल शख्स को बेइज्जत करते हुए रद्द कर दे। यसू ने फरमाया, मत्ती 12 बाब 20 आयत। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। आए देखते हैं यसू ने दुनिया के लोगों पर किस तरह रहमो करम फरमाया। यसू इंसानियत की अजमत पर तवज्जो देता था। जब लोगों का एक टोला जो खुद को मुकद्दसीन कहलवाता था, एक ऐसी औरत को यसू के पास लाया जो ज़ना की मुर्तकब ठहराई गई थी। वो चाहते थे यसू उसकी अदालत करे। तब यसू ने उस औरत को जलील करने में दूसरों का साथ नहीं दिया। यूहन्ना 8 बाब 5 आयत। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? मगर यसू ने उस औरत की तजलील में उनका साथ नहीं दिया। यूहन्ना 8 बाब 11 आयत। यसू ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यसू ने धुतकारे हुओं का खैर मकदम किया। जकाई जो महसूल लेने वालों का सरदार था, हर कोई उससे नफरत करता था, मगर यसू ने हर दिल अजीज होते हुए भी उसे अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। लोका 19 बाब 5 से 7 आयत। जब यसू उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जकाई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हाँ, वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। यसू गुनहगारों के साथ खाता था। जबकि यसू इंतहाई आला रूहानी शख्सियत था, फिर भी वो गुनहगारों के साथ जिन्हें लोग हकारत भरी नजरों से देखते थे, खाने की दावतों में शरीक हो जाया करता। मत्ती 9 बाब 10 से 11 आयत। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यसू और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? यसू को लोगों की जिस्मानी जरूरतों की वजह से उन पर तरस आया।
उसे फिक्र थी कि लोग भूखे ही घरों को ना चल दें। मरकस 8 बाब 1 से 3 आयत। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इनमें से दूर के हैं। चुनांचे यसू ने मौजज़ा दिखाया और हर कोई सैर होकर घर को गया। यसू ने शागिर्दों को मदद की तलब में पाया। जब यसू ने देखा कि शागिर्दों को समंदर में कश्तियां चलाने में दुश्वारी हो रही है, तो पानी पर चलता उनकी मदद को आया। मरकस 6 बाब 48 आयत। जब उसने देखा कि वो कहने से बहुत तंग हैं, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यसू ने पतरस की हिम्मत बंधाई के हौसला न हारे। जब यसू ने सोचा कि पतरस शर्मिंदगी की वजह से उसका इनकार कर देगा, तो उसने पतरस का हौसला बढ़ाया और उसे यकीन दिलाया। मरकस 14 बाब 30 आयत। यसू ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लोका 22 बाब 32 आयत। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। बच्चों, क्या आपने देखा यसू के साथ रहने में एक खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कायम रहता था। यसू हर तरह के जज्बात से भरपूर था। बच्चों, यसू हमारी तरह जज्बाती भी था। चुनांचे वो उदास हो जाता और कभी नाराज भी होता। मगर आए यसू के जज्बात पर गौर करते हैं। उसकी बेचैनी का सबब उसकी अपनी जात नहीं थी। खुदा का खौफ ना मानने पर यसू लोगों से खफा हो जाता। मरकस 11 बाब 15 से 17 आयत। फिर वो यरूशलेम में आए और यसू हैकल में दाखिल होकर उनको, जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया। और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। लोगों की बेरुखी पर यसू गमज़दा हुआ। इबादत खाना के लोगों को लगता था तौरात के हुक्म पर अमल किसी माजूर के सूखे हाथ की शफा से ज्यादा अहम है। मरकस 3 बाब 4 से 5 आयत। और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके
उस आदमी से कहा। अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। जब लोगों ने बच्चों को यीशु के पास आने से रोका, तो यीशु नाराज हुआ। मरकस 10 बाब 13 से 14 आयत। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए। मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का यीशु ये देखकर खफा हुआ। और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। सलीब की अजियतों का सामना करते हुए यीशु घबरा गया। मत्ती 26 बाब 30 आयत। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। मत्ती 26 बाब 36 आयत। उस वक़्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक के मैं वहां जाकर दुआ करूं। मत्ती 26 बाब 37 से 38 आयत। और पतरस और जबदी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक़्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। जब यीशु पर जिस्मानी अज़ियतें ढाई जा रही थीं, वो हमारी तरह खौफज़दा हो गया। तब उसने अपना खौफ आसमानी बाप के हजूर बयान किया। अजीज दोस्त की मौत पर यीशु बिलक उठा। यूहन्ना 11 बाब 17 आयत। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। यूहन्ना 11 बाब 33 से 35 आयत। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। शागिर्दों को ईमान में मजबूत होते देखकर यीशु खुश हो गया। लोका 10 बाब 1 आयत। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। लोका 10 बाब 17 आयत। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बद रूहें भी हमारे ताबे हैं। लोका 10 बाब 21 आयत। उसी घड़ी वो रूहुल कुदस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। बच्चों, जब यीशु जमीन पर इंसानी जिंदगी जी रहा था, उसने हर किस्म के इंसानी जज्बे अपने वजूद में उभरते देखे। उसने देखा तमस्खर का निशाना बनना कैसा होता है। उसने
अपने प्यारे शागिर्द के मुंह से अपना इनकार सुनने का दुख झीला। शागिर्दों से दुआ में साथ मांगा, मगर वो सब सो गए। तब उसने अकेला रह जाने का दर्द जाना। उसने दुनिया से जाते वक्त मोहब्बत करने वाले दोस्त की आंखों के आंसू भी देखे। बच्चों, खुदा ने यसू को इतने तकलीफ दे मराहिल से क्यों गुजारा? उसे इंसान की सरकशी दिखाई, धोखा फरेब से आशना किया, जिल्लत व रुसवाई, दुश्मनी और बेवफाई, यानी हर एहसास और हर जज्बा। आखिर इसलिए क्योंकि यसू ने हर मुश्किल में बाप का भरपूर साथ भी तो पाया। यसू ने अपनी सब मुश्किलों, उलझनों और हर तरह की आजमाइशों पर दुआओं के जरिया काबू पा लिया। चुनाचे यसू ने इंसानी रूप में आकर हर मुश्किल मरहला में सुरखरू होकर हमें अमली तौर पर खुदा के फजल और उसके साथ का एहसास दिलाया कि हम भी भरपूर और फतहमंद जिंदगी जी सकते हैं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु के जज्बात की दुनिया तो मेरे ही जैसी थी। मुझे भी लोगों की तवज्जो और उनकी मोहब्बत बहुत भाती है और दोस्तियां करनी अच्छी लगती हैं। यीशु ने खुशियों भरे लम्हात गुजारे, मगर हालात की अबतरी पर मायूसी भी देखी। उसने उदासी और बेचैनी भी देखी। प्यारे बाप, यीशु आम इंसानों पर गुजरने वाले हर तरह के जज्बाती मरहलों से गुजरा, मगर उसका रद्दे अमल मेरे जैसा नहीं था। मैं तो जरा सी मुश्किल पड़ने पर बिना उठता हूँ। मेरे दोस्त पास ना हो या किसी तरफ से मेरी हिम्मत अफजाई में कुछ कमी रह जाए, किसी की तवज्जो से महरूम रह जाऊं, किसी काम में जरा सी रुकावट आ जाए तो मेरा मिजाज बिगड़ जाता है। अगर कोई नापसंदीदा शख्स मेरे सामने आ जाए तो गुस्सा में बल खाने लगता हूँ। प्यारे आसमानी बाप, मेरे पास जज्बा तो है, मगर इतना बेहिस के तुझ पर भरोसा करने की बजाय अपने जैसे इंसानों पर आस लगा लेता हूँ। तेरी बजाय लोगों को
हो जाएं। यीशु ने मेरी खातिर कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं उसकी मोहब्बतों का एतराफ करता हूँ। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत।